Good morning beta. In previous video we have discussed about error. Okay, what is error beta? Error is nothing but just difference between true value and experimental value. जो भी एरर्स होता है बेटा, जो ट्रू वैल्यू जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए और जो एक्सपेरिमेंटली हम निकालते हैं वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज एरर्स. Okay, we have seen absolute error, mean absolute error, relative or fractional error as well as percentage errors. Today we will discuss about combination of errors. बेटा combination means what? जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज आएगी. So in some cases we will see that we have to add or subtract or multiply or divide. So ऐसे जो combinations होगा so errors को हम कैसे ऐड कर सकते हैं बेटा और कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, these things we will discuss in this topic. So combination of error, in combination of errors beta, first one errors of a sum or difference. So अगर नंबर दिया है हमें बेटा error के फॉर्म में, then how can we add or subtract? Okay, so first that experimental value will obtain by adding. First we will see the addition beta, सम की बात करेंगे हम. सो x इज इक्वल टू द a प्लस बी एंड ऑब्सोल्यूट एरर, मीन ऑब्सोल्यूट एरर दैट विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b. हियर व्हाट इज a एंड b? a इज द ट्रू वैल्यू ऑफ वन नंबर, b इज द ट्रू वैल्यू ऑफ another number, that is the error of first number and error of second number. Then after that for finding the result beta we will add x plus delta x. So this in this way we will solve any numerical. Let's see, you have two number beta. For addition you have two number 6 plus minus 0.3. here 6 plus minus 0.3, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? 6 will be the true value, that is accuracy. ये तो हमारा आना ही चाहिए, but we know that exact value we cannot obtain, so plus minus थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. So here 0.3 indicates that is error, means your value either more 0.3 or less 0.3 or 6 से 0.3 ज़्यादा भी हो सकता है, 6 से 0.3 कम हो सकता है. ये आपके पास रेंज है. ओके, एंड अनदर नंबर यू हैव सपोज 4.4 प्लस माइनस 0.2. So both contains error beta. Then now question is how can we add? First of all we will find x beta. Here x will be a plus b. a क्या है यहाँ पे 6, b क्या है बेटा 4. ये क्या है? that is error delta a, that is error delta b. understood बेटा? समझ में आ रहा है सीधा? okay, so x is equal to a plus b means 6 plus 4 we will get 10 beta. now that is mean absolute error, we will find delta x will be delta a plus delta b beta, that is 0.3 plus 0.2 we will get 0.5. so our result beta, so when we will add both number, that is x plus delta x means 10 plus minus 0.5, that is our result. समझ में आया बेटा? एडिशन कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू वैल्यू यू विल ऐड एंड देन यू विल ऐड बोथ एरर्स बेटा. बोथ एरर्स विल बी plus minus 0.3 and plus minus 0.2. you will get plus minus. here you can add here you can write like that, plus minus 0.3 plus minus 0.2. so you will get plus minus 0.5. It's mean that
when we do operation like sum beta, in which we have to add the errors. ओके जब हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे वहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, और इन सिमिलर मैनर वी हैव टू गो लाइक एडिशन. सो एडिशन कैसे करना है समझ में आया बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड बोथ ट्रू वैल्यूज, यू विल गेट 10, देन एरर्स 0.05 एंड देन 10 प्लस माइनस 0.5 बेटा. दैट इज आवर आंसर्स. In simple, we have to add true value together and errors together. So इस तरह से हमारा errors का sum होता है. Now we will see that बेटा difference. There is little bit twist in the difference बेटा. In addition, we have seen that we have to add both true values together as well as both errors together, but in the difference we will subtract or we will take a difference of true values but not difference of errors. Why? पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात कर लेते हैं. सिंपल, in the subtraction or in the difference, when we will do the subtraction beta, in this manner we will do. Here we will not take a difference. Why beta? When we are calculating sum or difference of error numbers, just one thing you have to keep in mind, errors are always added in addition and subtraction. Errors, I am not talking about true value, errors, जो errors आ रहा है वो, errors are always added in addition and subtraction. Why? Now question is why? Errors means what बेटा? जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो मिस्टेक्स आ रही है हमारे रिजल्ट में. सपोज what is the meaning of this number? It's mean that your result should be 2, but आप exactly if you are not able to obtain, then plus minus 0.1. okay, प्लस 0.1 ऊपर हो, 0.1 नीचे हो जाए. ओके, सो मे बी रिजल्ट आपका ऐसे भी आ सकता है बेटा 2.05. यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी प्लस माइनस 0.1 को फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे कितना ज़्यादा आ रहा है हमारा रिजल्ट, दैट इज 0.05. 0.05 इज द हाफ ऑफ 0.1. इट्स मीन दैट ये दोनों नंबर से आपको क्या पता चल रहा है बेटा, मैक्सिमम एरर कैन बी 0.1, बट इफ इट इज लेस देन 0.1 देन इट इज ओके. इट्स मीन दैट वी आर वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. हम ट्रू वैल्यू के उतना ही क्लोज आ रहे हैं, तो कम से कम जितना एरर है तो अच्छा है. तो इसलिए जब हम एरर्स की बात करते हैं तो हम सोचते हैं मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, नॉट मिनिमम, बिकॉज मिनिमम एरर्स आर गुड फॉर आवर रिजल्ट, बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन 2, 3 वॉट एवर दैट नंबर, उसके जितना क्लोज आएगा उतना अच्छा है. तो यहाँ पे जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं बेटा, तो हमको यहाँ पे सोचना है कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है. लेट्स टेक एग्जाम्पल. 5 plus minus 0.3, that is one number, and you have another number beta, that is 3 plus minus 0.2. In the subtraction it is clear that you have to minus a minus b, but not 0.3 minus 0.2. Yes, why? When we are finding the errors or when we are calculating or doing any experiment, our focus is minimum errors should be there. कितना कम से कम एरर हो वो हमारे लिए अच्छा है बेटा. सो जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कितना मैक्सिमम एरर आ सकता है इसमें. अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे बेटा, सपोज 5 minus 3 2, और अगर इसका भी डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0.1. यस, तो इट्स मीन दैट नाउ
योर रेंज इज जस्ट 0.1 प्लस और माइनस, बट बेटा हियर 0.3 एंड 0.5 अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 5 minus 3 दैट इज 2 एंड नाउ ऐड द बोथ एरर्स यू विल गेट 0.5. तब कितना आया था? 0.01. तो मिनिमम एरर जो आ रहा है वो 0.1 है और मैक्सिमम एरर जो आ रहा है दैट इज 0.5. सो इन द एरर्स वी हैव टू थिंक दैट आपकी मिस्टेक मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो मेन है. हमसे जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो मैक्सिमम 0.5 है. सो जब भी हम एरर्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक चीज सोचना है, मैक्सिमम कितना है. वाई मिनिमम में नहीं सोचना है, मिनिमम जितना कम है दैट्स अ गुड. हम हमेशा रिजल्ट में ये देखें कि हमारी मैक्सिमम मिस्टेक्स कितनी हो सकती है तो ही तो हम उसको करेक्ट कर पाएंगे, और मिनिमम हो रहे दैट्स अ गुड. सो ऑलवेज वी हैव टू थिंक अबाउट मैक्सिमम एरर. दैट्स वाई ऑलवेज वी विल ऐड द एरर्स एंड विल सी दैट कितना ज़्यादा रेंज तक एरर्स हो सकता है. सो ये डिफरेंस हमने निकाला 2 प्लस माइनस 0.5. सो दैट ट्रू वैल्यूज का रिजल्ट तो माइनस करना ही है, और ये 0.5 बता रहा है कि इतना ज़्यादा हो सकता है. इससे ज़्यादा एरर आ ही नहीं सकता, चाहे आप इसका मैक्सिमम 0.2 लो और इसका मिनिमम भी करेंगे तो भी. फॉर एग्जाम्पल बेटा हियर 0.3 मीन्स व्हाट? दैट कैन बी 5.3 और that is the addition of 0.3, maximum 5.3 and minimum it can be 4.7 plus 3 minus 3. Similarly here it can be 3.2 or 2.8. Are you getting my point बेटा? मैक्सिमम अगर एरर्स ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम 5.3 हो सकता है, मिनिमम आ रहा है तो 4.7 हो सकता है, मैक्सिमम आ रहा है या तो 3.2 एंड मिनिमम 2.8. इधर से कोई भी नंबर ले लो, इधर से कोई भी नंबर ले लो एग्जैक्टली जो नॉर्मली 6, 7, 8 में आपने पढ़ाई किया है, इसमें से इसको और इससे इसको और इस नंबर से इसको किसी को भी माइनस करके आप चेक करो बेटा, आपका प्लस माइनस 0.5 इससे ज़्यादा एरर नहीं आ सकता. मैक्सिमम एरर. दैट्स व्हाई वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, वी हैव टू ऐड द एरर्स. सो सिंपल थिंग इज दैट व्हेन यू आर डूइंग एप्लीकेशन, आल्सो एप्लीकेशन लाइक एडिशन और सब्सट्रैक्शन, true values definitely will be added or subtracted according to the depend on add or difference, but errors always will be added. अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंस निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा? 2.1 here 2.5. ये आप ये मैक्सिमम रेंज पे है और ये मिनिमम रेंज पे है, तो भी दोनों का सबसे बड़ा रेंज हो रहा है और दैट इज 0.5. इससे बड़ा रेंज हो नहीं सकता. सो हमें उसको भी ऐड करना होता है एरर में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? सिंपल. वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन. सो हियर इफ योर नंबर इज 5.03, 5 plus minus 0.3 is and 3 plus minus 0.2, then according to this formula first you will find x, that is 5 minus 3, you will get 2. Then delta x, errors are always added in subtraction as well. So plus minus 0.3 plus minus 0.2, you will get plus minus 0.5. Then what is your result बेटा? रिजल्ट मीन्स व्हाट? जो सब्सट्रैक्शन कर रहे हो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका? दैट इज 2 प्लस माइनस 0.5. मीन्स सब्सट्रैक्शन तो आपका 2 आएगा ही, बट ये अगर गलती भी होगा, मिस्टेक्स भी होगा तो प्लस माइनस 5 का ही होगा. अब एक चीज और यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, वाई 0.5 वी हैव टेकन हियर. अब सिंपल सपोज बेटा आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, आपका रिजल्ट आया 5.3, ये किया आपका आया 2.8. अब आप माइनस करके देखो आपका यही आएगा.
तो जब रेंज ये है कि ये मैक्सिमम तक भी जा सकता है और वो मिनिमम तक भी जा सकता है, तो अब नॉर्मली सब्सक्रिप्शन में तो यही आ रहा है ना, इसलिए हमने प्लस माइनस 0.5 लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको माइनस कर तो कितना आया 0.1, तो 0.1 तो अभी भी आ सकता है इसमें। 0.5 का मतलब क्या, 0.1 2 3 4 एज वेल एज 5 तक आ सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो अगर हम 0.1 लेते और ये नंबर अपने मैक्सिमम और ये मिनिमम पे होता तो क्या आपका रिजल्ट इतना आता? नहीं। अब ये भी मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम हो तो आपका 2.1 आएगा, 0.1। ओके, 2 प्लस माइनस 0.1 तो 2.0.1 आता, और ये मैक्सिमम ये मिनिमम तो 0.5 आता, तो वो इसमें अकोमोडेट नहीं कर पाते आप, इसलिए हमने मैक्सिमम रेंज को पकड़ा है, जिससे उससे लेस कितना भी आए नो मैटर। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन बेटा। I don't know you are watching videos or not beta, but do study and just you know my number, so please WhatsApp me and inform me how you are doing study बेटा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं क्या है या किस वे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ पे कन्फ्यूज़न है, सो मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जस्ट प्लीज़ इन्फॉर्म मी, आई विल डू अकॉर्डिंग टू यू नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सो बेटा आप कम्युनिकेट करते हैं इसलिए मुझे कुछ आइडिया लग नहीं पाता, इसलिए प्लीज़ इन्फॉर्म मी। एरर्स ऑफ multiplication and division beta. So when multiplication and division are given, now how we will do? Okay beta, suppose multiplication is given, then we will, so true value निकालेंगे तो क्या करेंगे a into b, but what about errors? Errors directly we cannot multiply and divide beta, then what we will do, we will take differentiation. What is differentiation? ये आने वाले लेसन्स में हमको सिखाया जाएगा आपको। ओके बेटा, सो डिफ्रेंसिएशन में कैसे लेंगे, रिलेटिव एरर्स लेते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स दैट इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, दैट इज द डिफ्रेंसिएशन। ये आपको आने वाले सेंस में बताया जाएगा, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको डेल्टा एक्स निकालना है बेटा, तो इसमें क्या करो, एक्स को उधर ट्रांसपोज कर दो। नाउ डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी होल मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो हम डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं और इधर से एक्स निकाल सकते हैं, तो हमको फाइनल आंसर इजीली मिल जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल बेटा, इसको मैं रहने देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आए मल्टीप्लाई करने के लिए। सपोज अब कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज हम रेजिस्टेंस जब निकालते हैं, 10th में आपने पढ़ा है बेटा, इन सीरीज बोथ रेजिस्टेंसेज आर एडेड। ओके, ये सब एग्जांपल भी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए ले सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए you can take area, you have to find the area and length and breadth are given. So suppose take area, suppose length is given here, length, take length A, suppose length is given 5 plus minus 0.4 and breadth is given 3 plus minus 0.3. Okay beta, so for finding the area, as we know that length into breadth, so it means that we have to follow the multiplication beta, and for multiplication what we have to do, first we will find x, x is equal to a into b, a into b means that true value beta, so your x will be 5 into 3, you will get 15 beta,
दिख रहा है? ओके, so we will get 15 here. And now errors, for finding the errors, this formula you have to use beta, that is delta x is equal to delta a by a. डेल्टा a कितना है बेटा? 0.4 by a is 5 beta, plus delta b that is 0.3, b that is 3 beta, whole multiply by, एक सेकेंड, I think so you are not able to see. Okay, now okay beta. So here 0.3 by 3 and then multiply by x. x क्या है जो हमने फाइंड किया है? दैट इज 15 बेटा. नाउ कैलकुलेट हियर 0.4 by 8 5 कितना आएगा बेटा? वेट अ सेकेंड. 0.5 we can write here 4 by 50 is equal to 4 by 5 into 10. 5 4 ja 5 8 ja 0.8. We will get here 0.08 plus beta. Here 0.3 by 3 beta. We will get 0.01. एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना सही है गलत. नाउ ऐड बेटा 0.08 प्लस 0.01 दैट विल बी 0.09 इंटू 15. 15 9 जा 135 बेटा. 0.09 135 एंड दो नंबर पे पॉइंट लगाना. यू विल गेट 1.35. देन योर फाइनल रिजल्ट will be x plus minus delta x. x is 15 beta, so 15 plus minus 1.35. अब इसको समझो आपकी मल्टीप्लिकेशन का. इन द सिमिलर मैनर वी हैव टू कैलकुलेट डिवीजन बेटा. तो कैसे फाइंड करना आपको समझ में आया? आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा. For the multiplication, first of all you will take the multiplication of that value जो होल नंबर में आपका अवेलेबल है. दैट इज द एक्यूरेसी. उतना तो आपका आना ही चाहिए. ओके, सो वी विल टेक एग्जैक्ट वैल्यू एंड देन डेल्टा एक्स बाई एक्स, दैट इज द डिफरेंशिएशन. डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और कोई नंबर है तो डेल्टा सी बाई सी. Then delta x is equal to, here the transposing, it will be in the multiplication place. Now delta a by a, delta a is, that is when we are writing a delta a or b, it means that is the absolute error beta. So here delta इतना 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 and then calculate करो, you will get 1.35. ये एक बार चेक कर लेना, मे बी आंसर रॉन्ग हो. Then after that final result में ऐसे लिख दोगे बेटा. And for the division, डिवीजन के लिए क्या करेंगे बेटा? सिमिलरली जो एग्जैक्ट वैल्यू का रिजल्ट होता है वो तो हमें वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं बेटा होल नंबर्स का. देन फॉर फाइंडिंग द डेल्टा एक्स, understood beta? Let's take example. Suppose you have 6 plus minus 0.3 and one more number, that is
3 plus minus 0.2. Okay, so first of all you will find x beta, that is a by b means 6 by 3, you will get 2. For finding the delta x, delta a by a, delta a is 0.3 by 6 प्लस यहाँ पे 0.3 ले लो बेटा, 2 से क्या होगा कि 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 0.66 आने लगेगा, देन इट विल कंफ्यूजन, सो टेक हियर 3. ओके, 3 मैंने इसलिए लिया है कि इजीली आंसर आ जाए, हमको जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वही हम लेंगे. ओके, 0.3 by 3 and multiply by x, that is 2 beta. Now calculate 0.3 by 6, 0.05, 0.01 whole multiply by 2, 0.06 into 2, 6 2 जा 12, 0.12 बेटा. ये वाला जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए सेम है, जैसे एरर्स का एडिशन ही होता था, ऑलवेज इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेटा. नाउ फॉर फाइंडिंग द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर मीन्स व्हाट, जो भी डिवीजन का रिजल्ट आएगा दैट विल बी x प्लस डेल्टा x मीन्स 2 प्लस माइनस 0. आया समझ बेटा कैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है. नाउ वन मोर थिंग, फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. व्हाट अबाउट पावर्स, अगर पावर्स दिया है तो कैसे करना है. ओके, जब भी क्या होगा बेटा पावर्स के फॉर्म में होगा उस टाइम कैसे करना है हमें, मीन्स थर्ड वन. फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नाउ पावर्स बेटा, addition, subtraction, multiplication, division और raised to powers. After finishing the lesson, इस पे हम एक वर्कशीट प्रैक्टिस करेंगे and then we will see that which type of numerical or mathematical question can be asked from this lesson. Okay? Then उसके बाद एक वर्कशीट प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसके बाद हम उस पर आपका टेस्ट रखेंगे. ओके, नाउ क्वांटिटी रेज टू पावर, अगर पावर के फॉर्म में है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. ओके, ऐसे केसेस में ऑलवेज वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर. व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर बेटा, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. अगेन रिलेटिव एरर ऑलरेडी वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो, दैट इज डेल्टा एक्स बाई एक्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एरर. if the quantity is given in the form of powers, for example, suppose you have x is equal to a to the power 2, b to the power 3, c to the power 4, then how will we solve बेटा. ऐसे चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, दैट इज़ फॉर रिलेटिव एरर. इस पे न्यूमेरिकल्स हम लेसन खत्म होने के बाद देखेंगे. इस पे जनरली ऑलवेज मोस्ट ऑफ टाइम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पूछते हैं. इसमें परसेंटेज एरर का भी हमने फॉर्मूला देखा है, दैट इज रिलेटिव एरर इनटू 100. ओके, आफ्टर दैट क्या लेंगे यहाँ पे, पावर्स हियर. पहले इसको आपको मैं फॉर्मूला बता देता, नहीं नो प्रॉब्लम, नो इशू बेटा. सो कैसे आप जाना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2, या 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए बाई ए प्लस
3 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी बाई बी प्लस, नाउ इट इज इन डिवीजन, नो मैटर, डिवीजन में भी तो हमें सिमिलर ही जाना होता है. सो 4 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा सी बाई सी. ये फॉर्मूले से, इसको आप फॉर्मूला भी समझो. यहाँ पे अभी ए बी सी अगर कोई नंबर होता बेटा तो फिर हम उसी वे में जाते. सपोज यहाँ पे 5 होता और 5 की पावर 0 जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया होता वो नंबर्स आपको यहाँ ले लेना है और यहाँ पे जो भी अवेलेबल रहेगा ए की प्लेस पे आपको क्या हो सकता है 2 प्लस माइनस 0.1 लाइक दैट. सो 2 नीचे ले लेना है, 0.1 ऊपर ले लेना है. तो हम ये आंसर अपना निकाल सकते हैं दिस फॉर्मूला से. अंडरस्टूड बेटा. एंड सपोज इफ दे आर आस्किंग अबाउट परसेंटेज एरर, नो प्रॉब्लम, into 100 into 100 into 100 into 100. Okay. In next class we will discuss about our last topic, that is how to measure mass. ये हमको हमारा इनिशियल टॉपिक था बट इसको हमने लास्ट में रखा है क्योंकि एरर्स एंड डायमेंशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फोकस करने के लिए. नाउ बेटा इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेजर लेंथ, मास एंड टाइम. थैंक यू माय डियर चिल्ड्रेन.